49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यहाँ पे गोवा में हो रहा है एंड उसका और एक सेक्शन है फिल्म बाज़ार जहाँ पे नए और बहुत सारी अच्छी फिल्में यहाँ पे दिखाते हैं एंड गुड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर्स स्क्रीन प्ले सभी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया था एंड देन आई फाउंड अ वेरी टैलेंटेड पर्सन ओवर हियर जिन्होंने और एक इंटरव्यू चालू था एंड देन आई रियलाइज कि यहाँ पे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। दोस्तों आपके सामने इस समय मेरे साथ है रुपेश कुमार सर। वेलकम सर फॉर द शो। एंड सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी फिल्म थी 2015 में लाइफ इज़ अ फिल्म, क्या थी ये फिल्म? ये फिल्म बेसिकली एक जर्नी थी मेरे लिए, ये जानने के लिए कि असल में लोग जल्दी क्यों मरते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न दैट पीपल डाई अर्ली. यू नो ऑल्सो व्हेन आई वाज able to see there is I mean everybody talk about there is a secret power which is designing our life. People believe in different gods, but everybody know that there is a shakti which is designing your life. So my film trace out that, you know, that कैसे एक शक्ति हमारी लाइफ को क्रिएट करती है. So that shakti is basically our own imagination, you know. So if you play with your imagination in wrong way, you'll have a wrong result for sure. That is the whole crux of it. So my film talks about influence of cinema and early death of film celebrities like Divya Bharti, Paul Walker, or anybody who died early. Like ऐसा भी है कि क्लब 26 या क्लब 29 जहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स अर्ली एज पे मरते हैं. तो वो भी इसमें कुछ हद तक उसका भी कुछ कनेक्शन है. हाँ देखिए, एक्चुअली क्या है कि सिनेमा इज़ अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल मीडियम and as an actor definitely they are trained to act in films, but then influence of any film, what happens, nobody really analyze that. If you talk about Smita Patil or many other celebrities, you will find like I'll quickly tell you about Smita Patil. In one of the film she has acted as a person who is pregnant and then dying, you know, in a film. Okay. Which happened almost exactly the same thing in her real life, you know. So influence of cinema is big, but not everybody talks about it. People are fascinated with you know, cinema, and they want to create variety of things. But do you think that creating, you know, a cinema which disturb other person and also, you know, create a very bad society, that you know, that definitely शायद अभी जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं हमें उनको समझ में थोड़ा देर से आएगा, लेकिन ये जो आपका प्रोजेक्ट है या फिर ये जो आपके थीम है वो आउट ऑफ द बॉक्स है. ये तो पहले मैं कहना चाहता हूँ. एंड देन देयर वाज अ बुक मतलब सीक्रेट. वहाँ पे भी एक कहा गया था कि आप जो सोचते हैं वो आपके सामने आता है. तो वैसा ही कुछ. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है. मैं लगभग पूरे दिन बहुत सारे संजोग मेरे साथ होते रहते हैं जो मैं नोट डाउन करता रहता हूँ. आई एम कमिंग अप विद अ न्यू सीरीज कॉल्ड भगवान रुपेश. So it's about a guy who start experiencing his godhood. You know what is why this whole godhood awaken inside him, because he starts seeing that everything is predestined as he enter in his scene. You know, like I'm thinking about having a pizza and somebody offer me pizza in next scene of my life. So this happens with everybody happens. So initially जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, जब मैं रेडियो में 2005 में I started working with Red FM, Big FM channels. For 4 years I was with radio industry, and then I became producer for, you know, creating content for radio. So I created a lot of content for Hangama, and I became producer, and that's when I started making money to begin my film, you know, which was more important for me to, you know, to talk. So 2015 में रिलीज हुई थी ये फिल्म. नहीं, 2015 में ये फिल्म अभी आई थी, और जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए बहुत स्ट्रगल है.
और टाइम लगती हैं चीज़ें, तो आई एम इन चैट विथ मेनी पीपल, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु एडमायर्ड द फिल्म. देर इज़ अ वेरी पॉपुलर फिल्म कॉल्ड बिलियन कलर स्टोरी मेड बाय मिस्टर पैडी ए पद्म कुमार. उनकी फिल्म बिलियन कलर स्टोरी नेटफ्लिक्स पर है. उन्होंने मेरी फिल्म देखी है, ये अप्रिशिएटेड अ लॉट. And a lot of more people see it's a experimental film. It's in a different, altogether different style, so it's gonna take maybe some time, but it will eventually come out because it talks about early death of people, which everybody wants to know, that why people die early in life. सो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई थी? आपके दिमाग में ये करना है, इसका कैसे, क्या मतलब कब लगा आपको कि इसके ऊपर करना हो? एक्चुअली मैं आपको अगर सच बताऊं तो बचपन से ही मैंने बहुत सारे अर्ली डेथ अपनी फैमिली के अंदर भी देखे हैं. मेरे रिलेटिव में जो मेरे बहुत एक क्लोज अंकल थे, वो उनकी अचानक से डेथ हो गई. या और मेरी एक बुआ जी थी, उनकी भी बहुत अर्ली एज पे डेथ हुई. तो आई वॉज काइंड ऑफ puzzled with that idea that why people die so early, what is the reason behind it. And then slowly I started researching a lot, and while doing the research I started recording the same scene, because I come from I was selected in National School of Drama. Yes, as an actor, for the workshop, which happens every year. Like, they go to different state, and they find they find new people to create a workshop. एक नाटक करते हैं वो किसी भी स्टेट में जा करके, क्योंकि एनएसडी का जो उसमें सिर्फ 20 25 30 लोग की ही हर साल बैच होती है. तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी. तो एक्टिंग का कीड़ा भी था, तो वो भी उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें वो शुरू हो गई. मैंने क्यों पूछा, क्योंकि अगर आप इतना कुछ सोचते हो तो आपका जो हिस्ट्री है वो भी मैटर करता है लाइफ में. कहाँ से आप आते हैं, आपका कौन सा मतलब किस राह से आप चल के आए हैं, वो भी मैटर करता है. क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी है जहाँ पे आप जैसे बोलते हैं कि सोचना, ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो बैड. I must quote this, that thinking is difficult, that's why people judge, said by Carl Jung. Carl Jung एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं जिन्होंने सिंक्रोनिसिटी पे काफ़ी लंबा काम किया है. सिंक्रोनिसिटी उसी को कहते हैं कि जब हमारे साथ मीनिंगफुल संजोग होते हैं. आपने पिज़्ज़ा सोचा और किसी ने पिज़्ज़ा ऑफ़र किया. आपने किसी के बारे में सोचा, उसकी कॉल आ गई. ये बहुत कॉमन है. See, I'm only enlightening people through this, talking about our true self is a spirit. We are playing, different role. अब आप as an anchor right now, you are playing the role of anchor, but then in home you are a father, you are a brother, you are playing many more role. क्योंकि मैं और एक पढ़ रहा था वहाँ पे बटरफ्लाई इफेक्ट. हाँ, बटरफ्लाई इफेक्ट. वो भी एक बहुत अच्छा, बोलते वक्त मुझे याद आया कि ये भी कनेक्ट हो सकता है. हाँ. क्योंकि हर चीज जो होती है हमारे दुनिया में, तो everything is, see, it's interconnected. That's true. Even our meeting is interconnected. This is predestined. It never happens that suddenly I see that person and recently I stay in Bombay, and recently I was coming from Borivali, to my home, and I saw a lady, a foreigner lady, whom I felt very strong connection to say hello. But then I felt this is very awkward. Why should I go and say, this is not a very good idea. But next time, after a week, I saw her again. And then I went and said hello to her, and she was very happy to meet, and she immediately started praying, as in, like, she said that I'll pray to Jesus for you. And that time somebody gave me a Bible, a small Bible, from a friend I got. So everything began with your own thinking. If you're thinking too much about a certain image, sound, or any idea, you will start seeing that there are many things which is around that is attracting, is coming towards you. It's getting attracted. बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिल्म के ऊपर है या फिर आज के मीटिंग के ऊपर है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ. डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ? Life after death, for sure. I believe this is right now also, it's more like a film going on. See, अगर आप वेदों को पढ़े तो वेदों में कई ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. जैसे कहते हैं कि देवलोक
एक जहाँ पे जैसे कहते हैं कि देर इज़ अ देवलोक, तो वहाँ की जो टाइमिंग और यहाँ की टाइमिंग है इट्स डिफरेंट. यहाँ पर जो एक साल हमारा बीतता है वहाँ एक दिन के बराबर होता है. I mean, it's written, in the scriptures, and if you see Inception and all, and more bigger films which actually the director made, it was all related to that concept only. If you dig in our history, you will find more real truth of life. अच्छा, अभी हम फिल्मों के ऊपर बात करते हैं एंड आपकी किताब भी आई है जो अभी मार्केट में है, अभी अवेलेबल है. Amazon पे है. Okay. Amazon पे है. जरूर मतलब आप lifeisafilm.com और Amazon पे you can find the please. ओके, ये जो बुक है वो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी या फिर lifeisafilm.com, इस पे भी, इस वेबसाइट पे भी आपको खरीदने को मिल जाएगी. आप पढ़िएगा, आपके ऊपर आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है. और मैं चाहता हूँ कि मैं भी प्रे करूँगा कि इनकी मुलाकात, इनका कनेक्शन अमेजोन या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो एंड जल्द से जल्द ये फिल्म हमें देखने को मिली एंड हमारे पूरे ऑडियंस भी है वो देखने. एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. Just a couple of thoughts about AFI 2018 and a couple of things about your movie. It is a wonderful movie, na? Yes? आपका message that's it. No, I am thankful to the director of the festival and Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. It's a privilege to be part of this IFI, and I'm really grateful that they are showcasing October in the panorama section. You can't feel more privileged than this. A lot of hard work then goes into the film, and when it gets acknowledged, you really feel wonderful and thankful. Regarding the movie, I mean, as he said, I mean, it's been a long labor of love for all of us, and apart from having the commercial success that it had, what we were looking for was more on the creative side of it, and having been nominated into the IFI Goa, it's a great privilege for us. यार बता तो देता. फोन उठाया तूने? मेरी तो हवा खिसक गई थी आज उसको देख के यार. तो कभी आईसीयू गया? नहीं गया ना? मैं गया हूँ 2 बार. तू 2 बार गया? हाँ, आज और कल. उसने कॉलेज में कभी या मेरे बारे में पूछा था तुमसे? I really don't think she was interested in you. तो मेरे लिए क्यों पूछा उसने? सिस्टर, आज यूरिन आउटपुट ज्यादा नहीं है. आज पानी ज्यादा दिया था. तुम कोई जॉब नहीं करते क्या? हाँ? बड़ा हॉस्पिटल करा तू आजकल. हर आए दिन वहीं चला होता तू. कुछ ज्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहा तुम लोग इतने अनअफेक्टेड कैसे हो? लेकिन इस तरह सब छोड़ छाड़ के थोड़ा ना बैठ जाएंगे. 49th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल सुरू आहे सध्या अँड आमच्याबरोबर आहे मृणाल मॅम. आणि मॅम, सगळ्यात आधी फिल्म फेस्टिवलबद्दल बोलायचं आहे. अशा तऱ्हेचं म्हणजे एशियातला मोठा फेस्टिवल आहे. काय फायदा होतो नवीन फिल्म मेकर्सला किंवा आता एक्झिस्टिंग फिल्म करतायत त्यांना सुद्धा कसा काय फायदा होतो? एक तर इफी फक्त फिल्म्स या आणि फिल्म्स बघा असं नाही आहे. हा वर्षानुवर्षाचा ऑडियन्स आहे की जो फिल्म्स बघून बघून तयार झालेला ऑडियन्स आहे. सो त्यांच्याबरोबर त्यांच्यासमोर फिल्म बघणं आणि दाखवणं इज अ ग्रेट हॅपीनेस. आणि दिस इयर आय एम फिलिंग व्हेरी बॅड की खूप मराठी कमी फिल्म्स आहेत तिकडे, पण आय एम शुअर नेक्स्ट इयर विल कम विथ अ बँग. दुसरी गोष्ट म्हणजे तिकडे मास्टर क्लासेस आहेत ज्यांना पुढे फिल्म मेकिंग करायची. आता मी आय एम अ फिल्म मेकर मायसेल्फ, पण तरीसुद्धा मला शिकण्यासारखं इथे खूप आहे. ऑल्सो इथे अनेक मेकर्स येतात, ॲक्टर्स येतात. वी मीट इच अदर, वी डिस्कस आयडियाज, आणि त्याच्यामुळे एकंदरच तुम्ही समृद्ध होऊन परत जाता. इट्स एन एक्सपिरियन्स. सध्या आम्ही फिल्मबद्दल बोलतो आहे, पण आता नवीन जे प्लॅटफॉर्म येत आहे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, ज्याच्यावरती खूप मूवीज किंवा खूप शोज सध्या दाखवले जातात, नेटफ्लिक्स म्हणा किंवा ॲमेझॉन, ती मीडियम किती पॉवरफुल आहे आणि त्याच्याबद्दल काय बोलतो? डेफिनेटली आहे. मला वाटतं की आता टी व्ही किंवा जे वेब मीडिया आहे हा जास्तीत जास्त पर्सनलाइज मीडिया आहे, आणि थोड्याच वर्षामध्ये टी व्ही बघणं बंद होऊन आपण आपला टी व्ही बघायला सुरुवात करू. इट हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड आय गेस. आणि तो इंटिरियर्समध्ये सुद्धा आहे.
प्रत्येकाला स्वतःच्या चॉईसच्या गोष्टी बघण्याची संधी आता मिळते आहे. त्याच्यामुळे हा मीडिया इज नॉट इवन टुमॉरो, इट इज टुडे ओनली. सो एव्हरीबडी इज ट्राईंग टू एक्सप्लोअर आणि त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला पुष्कळ इथे मार्गदर्शन मिळतं. एक हा प्रश्न विचारच्या मागे एक आणखीन होतं की लेखक आधी पण कमी होते आणि आता पण कमी आहे, त्याविषयी एका डायरेक्टरने बोलले होते. पण डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरती एका लेखकाला आपली लेखणी चांगल्या तऱ्हेने मांडता येते, चांगल्या ओपन अप होता येतं. मला वाटतं की निर्बंध खूप कमी असतात, सेन्सरशिप नाही आहे अजून, त्याच्यामुळे ते हवे ते विषय हवे त्या पद्धतीने मांडू शकतात. अर्थात हे करताना रिस्पॉन्सिबिलिटी जपली जाईलच भारतासारख्या देशामध्ये. आणि आय एम रिअली लुकिंग फॉरवर्ड ॲज अन ॲक्टर अँड ॲज अ डिरेक्टर टू दिस मीडिया. थँक्यू मॅम, थँक्यू व्हेरी मच फॉर टॉकिंग विथ अस. 49 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सध्या गोयान चालू असा आणि ह्या वेळार हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर अभी एक नया सेक्शन जो यहाँ पे डाला हुआ है वो है स्पोर्ट्स सेक्शन. स्पोर्ट्समैन के ऊपर या फिर खेल के ऊपर बहुत सारे फिल्म बनती है. बहुत सारे अलग अलग रंगों के फिल्म्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और एक अच्छा सेगमेंट यहाँ का है वो है मुझे देखने को मिला वो एक इंस्पिरेशनल मूवीज़ जहाँ पे हम देखते हैं और इंस्पायर होकर कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं. ऐसे ही एक मूवी रिजवान और जिसके ऊपर ये मूवी है उनके साथ मैं रिजवान सर, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच सर. ये मूवी क्या है और इसका मेन हेतु क्या था बनाने का? ओके, ये मूवी है मेरी लाइफ की जर्नी के ऊपर है. मैं ओरिजिनल पोरबंदर गुजरात का, जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है, वो गांव से हूँ. और बचपन में मेरे 17 साल महात्मा गांधी जी के घर के साये में गुजरा है और हम बहुत छोटे परिवार थे. लेकिन 17 साल की उम्र में मुझे अफ्रीका में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं अफ्रीका चला गया. लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं था तो अफ्रीका में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लाइफ की मैं चैलेंजेस फेस की. और अभी 32 साल हो गए अफ्रीका में और मेहनत करके, ईमानदारी के साथ मेहनत करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा हूं. तो ये यूथ को बहुत इंस्पायर करेगी, बहुत मोटिवेट करेगी. उनको ध्यान में रखते हुए ये मूवी बनी है, जिसका 17 साल जो आप पोरबंदर गुजरात में रहा हूँ वहाँ शूटिंग हुआ है और अफ्रीका का कोंगो 13 साल रहा हूँ वहाँ शूटिंग. और 15 साल से मैं मोजाम्बिक में रहा हूँ, जो पोर्चुगीज़ कंट्री है, जो गोवा के साथ कनेक्शन है, वहाँ मेरी जो लाइफ वहाँ की है. तो ऐसे अलग अलग अफ्रीकन कंट्री सब मिला के ये मूवी बनाई है जो यूथ को बहुत इंस्पायर करेगी और एक तरह का मोटिवेट होगा कि भले हम पढ़े लिखे नहीं है, लाइफ में हम गरीब है या छोटे परिवार के हिस्से है, पर आप जो बड़े ड्रीम्स करोगे, बड़े आपके एम्स हाई रखोगे और ईमानदारी के साथ आप मेहनत करोगे ना, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. दुनिया में कुछ भी आप अचीव कर सकते हो. आज मैंने भी ऊपर वाले की मेहरबानी से और लोगों की दुआ से आज तकरीबन 3,500 एम्प्लॉइज़ है हमारे कंपनी के अंदर, जिनका मैं चेयरमैन हूँ. तो आप देख सकते हो कि 32 साल के अंदर मेरी पूरी दुनिया चेंज हो गई. Maybe you welcome the entire team of Monitor here. Please welcome them with a huge round of applause. This is the movie that's going to be screened today. We have the main actress, the director and the screenwriter. Welcome you all. So let's start talking with the director of the movie, Mr. Hari Vishwanath sir. So sir, welcome to AP 2018. How excited are you for this year? I'm really excited because last time when I was here, my feature film review said it was here. So consecutively for the second time, my film has been selected here at Indian panel. So really excited. So welcome to AP 2018. Please tell us, so your movie is going to be showcased now. How excited are you? I'm pretty excited and I want to share one incident. So last year I came here like to attend AP. So there I met Hari and he kind of shared this idea of this film Monitor. And I said, let's just do it, like, you know, you tell me whenever you're ready, I'm up for it. And then like, next year we are here with the film, so it's quite nice. I mean, it feels pretty good. Yeah. Welcome ma'am. So ma'am, from being an actress to producer to director, poet, social activist and now screenwriter, how has your journey been so far? Well, this is a long journey and of course I am enjoying my new this thing. And from my first film, I started my writing all these screenplays and all. But for this Hari's new film, this was something completely different because only there was one idea. From there, everything was developed. So this is something new to me.
49 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में चल रहा है एंड बहुत सारे फिल्म्स यहाँ पे रंग बिरंगीन फिल्म्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कल्चर्स एक्सचेंज होते हैं। इसी के साथ साथ हाल ही में हमने एक वेब सीरीज़ देखा था या फिर नेटफ्लिक्स पे एक शो देखा था, सेक्रेड गेम, और उस फिल्म में नवाज भाई ने एक डायलॉग बोला था, मेरा तीसरा बाप। यस, हमारे साथ है यहाँ पे जाने माने हस्ती इस दुनिया के या फिर इस फिल्म सिटी के हम बोल सकते हैं, एंड उनके साथ हम बातचीत करें। सर, नेटफ्लिक्स या फिर सेक्रेड गेम के बाद बहुत सारी आप पे उम्मीदें बढ़ गई है एंड यस और सेकेंड जो सीज़न आने वाला है पूरा आपके ऊपर से क्या है और कैसे क्या रिस्पांस मिला उसके बाद? कुछ नहीं, अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों को बढ़िया लगा। मैं अभी वरुण से मिलने वाला हूँ, अभी फ़ोन ही आया था उनका, तो मुझे मालूम नहीं अभी रोल क्या लिखा है उन्होंने। मैं बॉम्बे जाऊँगा ये फिल्म फेस्टिवल से निकल के गोवा से, तो मिलूँगा, सुनूँगा तो मुझे भी पता चलेगा। जी हाँ सर, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं और बहुत सारी फिल्म्स, 200 से ज़्यादा फिल्म स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पे। इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, तो कैसे क्या न्यू कमर या फिर हमारे फिल्म इंडस्ट्री को कैसे क्या फ़ायदा हो सकता है? पता नहीं यार कैसे फिल्म फेस्टिवल से कैसे फ़ायदा हो सकता है, बट आई एम श्योर कि माहौल बहुत अच्छा है। इतने सारे लोग आए हैं अलग अलग मुल्क से, जगहों से फिल्में देख रहे हैं। देखो लाइन लगी है उधर अभी भी, तो एक सिनेमा को लेके ऐसा माहौल बनना ही अपने आप में बड़ी बात है। और ऑफ कोर्स फिल्म फेस्टिवल होगा तो नए जो बच्चे हैं, लर्नर हैं फिल्म स्कूल के या गोवा कला अकादमी और भी फिल्म स्कूल के बच्चे आएंगे, देखेंगे, तो माहौल बनेगा तभी तो फिल्में, अच्छे फिल्म मेकर्स आएंगे हमारे देश में, नए लोग। सर, यू आर फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, थिएटर से आप है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। थिएटर तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है, सबको पता है, लेकिन फिल्म या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, आपको कौन सा मीडियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है? देखो, मज़ा तो एक अभिनेता के तौर पे नाटक थिएटर में ही आता है, लेकिन थिएटर में एक पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम पे 500 लोग, 1000 लोग देखेंगे। डिजिटल में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई देख सकता है, तो इसकी ऑडियंस बड़ी है। बाकी कलाकार का जो आनंद है वो थिएटर में ही आता है। जी हाँ। सर, आप गोवा में आए हुए हैं, गोवा में आपने पहले भी स्टूडेंट के साथ बातचीत की हुई है, आपको गोवा के कलाकार जो है उनके बारे में क्या लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे कलाकार, हमारे मुल्क में ही कलाकारों से भरा हुआ है ये मुल्क। उन सबको मेरी शुभकामना है, अपने आर्ट फॉर्म को ये करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।